are you like allowed to quote some instances from Warzone that you find really challenging? जैसे Warzone से कोई भी ऐसी इंस्टेंस है जैसे आप पहली बार जब लैंड किए होंगे इन दी Warzone या कोई हम्म। ऐसा सिचुएशन जो आपको लगा कि हाँ यार हो सकता है यहाँ मैं फंस गया ऐसा कुछ है? ओके ओके, फंस गया नहीं भाई। देखो, कोबरा के लिए एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि कोबरा कभी हाँ फंसती नहीं है। हाँ। कोबरा ऑलवेज फॉलोज देयर टैक्टिक्स। हम्म, टैक्टिक्स के मामले में या जंगल वॉरफेयर के मामले में, जंगल को सरवाइव करने के मामले में कोबरा से बेहतर शायद ही कोई फोर्स होगी। तो फर्स्ट डे तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि एनकाउंटर हुआ तो हमारी एक टीम एनकाउंटर में है, एक टीम कहीं और है, फिर देन वी हैव टू गो देयर एज अ बैकअप एंड रिकवरी टीम। Hello and welcome everyone on Career Tribe. So viewers, today we have with us Assistant Commandant Shashi Bhushan sir, Cobra Forces, and he's also inspiring people. He has a YouTube channel named as Gladiator Commando. You can find the link in description. Apart from this, I want to tell everyone that while I had this thought of starting a YouTube channel, the first man I wanted to invite was Shashi sir. And today, while I got this opportunity, I'm really very excited about this. So, sir, I would like to thank you for taking out time out of such a hectic schedule. And Shashi, sir, I welcome you on the Career Type channel. Jai Hind. Yeah, thank you and Jai Hind. Thank you very much. Yeah. I was also looking forward for this opportunity, and I'm really sorry that I couldn't make it because of some or the other reasons. I kept postponing this. It's So totally okay, sir. It's we are totally doing it right now. yeah, Yeah. we are. Okay, sir. There are many aspirants who want to join Cobra Forces, and they are actually very much determined about joining the forces, but they don't have very much knowledge about the same. And we need your guidance in the same, sir. But before we begin, first I want to know you a bit, and I also want the viewers to know you a bit. सर जब कोई भी वर्दी की तरफ जाता है तो सर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है सर. सर आई वांट टू आस्क यू कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्विसेज सर? As far as I remember, when I was a kid, I was asked by somebody के बड़े होकर के आप क्या बनोगे, तो my first response was मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा. And I have no idea how it came to my mind, and it just stayed there forever. मेरी फैमिली में किसी ने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज कभी ज्वाइन नहीं किया. इनफैक्ट यू नो, इन इंडिया वी टॉक अबाउट खानदान एंड एवरीथिंग. मेरे खानदान में कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में कभी भी नहीं रहा. आई एम द फर्स्ट पर्सन. उस टाइम पर तो उतना आइडिया नहीं था आर्मी में जाना है. यूनिफॉर्म का चार्म जो है वो बहुत बाद में डेवलप हुआ, बट पहले था एडवेंचर्स का चार्म था. You have to you'll get an opportunity to work for the nation. You'll get an opportunity to be a hero kind of a thing. जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि you are rowdy and you are a hero also. तो उस तरीके का चार्म था बचपन में. धीरे धीरे करके a sense developed कि it's actually about more about responsibility than being a hero. Yes sir. So उस टाइम तक आते आते ये था कि नहीं, अगर लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे किसी भी तरीके से उसको ज्वाइन करना पड़े, किसी भी रैंक पे ज्वाइन करना पड़े, बट मैं ज्वाइन पक्का करूंगा अगर अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स. एंड फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो आई जॉइंड इट हियर. That's really inspiring, sir. Sir, let's move a little back. जब you were selected as assistant commandant, what was your preference list at that time? There are many doubts in the minds of aspirant about choosing the right list of preference. क्योंकि इस एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए ना सर कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्लडेड है अबाउट चूजिंग द राइट प्रेफरेंस लिस्ट, एंड अडेप्ट एक्सपर्ट कैन ओनली आंसर दिस, सो प्लीज. See, my preference was CISF, CRPF, BSF, ITBP and SSB. और CISF इसलिए थी क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे थे CISF भरो, अगर मिल गया तो CISF मिल जाएगा, अच्छा रहेगा. They knew CISF people always in the cities and everything. I'm from a metro city, तो उनको मालूम है कि दिल्ली मेट्रो में सब CISF के हैं, एयरपोर्ट पे सब CISF है. तो उनको लगता था कि CISF मिलने से मैं थोड़ा सिटी और उसके आसपास में रह सकता हूँ और घर के आसपास शायद पोस्टिंग मिल जाएगा मुझे. तो दैट वाज द मेन प्रेफरेंस.
because of my parents, but I always wanted to join CRPF. मुझे लगता था कि it's more adventurous to be in CRPF क्योंकि हम लोगों को जंगल में जाने के लिए मिलेगा, नक्सल हिट एरियाज हैं, LWE कॉरिडोर एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट है, श्रीनगर है, कश्मीर है, हर तरीके के थिएटर्स देखने के लिए मिलेंगे और हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पर काम करने की। तो मेरी प्रेफरेंस इसलिए CRPF थी एंड मुझे मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा CRPF ये मिलने के बाद। सर एग्जाम प्रेशर का सर जो फंडा है सर, वो बहुत सारे लोगों का एग्जाम लेट उठता है। सर आपने अपने एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन के टाइम पे सर कैसे टैकल किया था ऑल दिस? बिकॉज क्योंकि सर जो पीपल हैं या जो एस्पिरेंट्स है वो मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर कर देते हैं। सर व्हाट्स योर टेक? ये तो है, हम लोगों को एग्जाम्स को ना ऐसे भूत के जैसा समझते हैं लोग। टू बी वेरी फ्रैंक, उनको लगता है कि इट्स समथिंग which is there but we cannot see it, you know, you cannot fight something which is invisible because you have no idea about the strength of the opponent. एग्जाम्स के साथ भी लोगों को यही डर रहता है कि एग्जाम उनको एक भूत के जैसा लगता है जिसको वो टच नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या सिलेबस में क्या चीज उन्होंने कवर किया होगा, कितने मार्क्स का क्या स्कीम रखा होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर इज देयर and it's always there, and I believe sometimes it's good too because it keeps you focused. उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आपके पास में एक ऐसा हैबिट रहना चाहिए जो आप करें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप काम कर रहे हैं। जैसे पेंटिंग करना एक हैबिट हो गया, तो whenever you feel कि आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है and it might turn into an agony for you before examination, तो आप पेंटिंग करते हैं तो आप पेंटिंग कीजिए, बिकॉज ऐसा करने से आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको शौक है पेंटिंग करने का, आप पेंटिंग कर रहे हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्रू कैनवस, और वो करने से आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड नहीं है, काम करने का प्रेशर नहीं है। आप गाना गाते हैं, आप डांस करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप ट्रेवलर हैं, घूमना पसंद करते हैं, तो आप कुछ दिन घूमिए, 2-3 दिन घूमिए, और वो करने के बाद में देन गेट बैक टू द थिंग कि ये मैंने इसलिए किया कि इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेक। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक स्कूल में भी एक बार तो ब्रेक लेते ही हैं, लंच ब्रेक लिया, उसके बाद हमने दोबारा से पढ़ाई शुरू किया। कॉलेज में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, बीच में एक ब्रेक होता है, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लोग ये ब्रेक लेना भूल जाते हैं। उनको वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा हिंडर होती रहेगी और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। दैट्स माय थिंग। मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं मूवीज बहुत देखता था ब्रेक के टाइम पर। हाँ, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये आपने बिल्कुल सही बात। ब्रेक्स आर, और सर कई बार क्या होता है ना कि ब्रेक कई लोग इतना लंबा ले लेते हैं कि प्रिपरेशन बहुत पीछे छूट जाती है एंड ब्रेक वाला ही फेज चल रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है थोड़ा। हाँ, वो भी गलत है, बिल्कुल वो भी गलत है। ओके सर, जब कोई एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करता है आजकल सर, जैसे कैंपस हो गया है जैसा भी, तो देयर इज बेसिकली अ इनॉक्यूलेशन सेरेमनी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग। एवरीबडी गेट्स टू नो ईच अदर, क्या है कौन क्या है। सर जब आप एक डैगो होते हैं इन सीआरपीएफ एकेडमी, तो क्या कोई ऐसी सेरेमनी तो आई डोंट थिंक की होती होगी, बट हाउ वाज योर फर्स्ट डे व्हेन यू जॉइंड सीआरपीएफ एकेडमी? मैं अपना तो बाद में बताऊंगा, पहले जो मेरा फर्स्ट डे था ना, मैं फर्स्ट डे को एकेडमी में पहुंचा एंड आई डोंट नो हाउ हैप्पी आई वाज, बट माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। या दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। मेरे मम्मी और पापा दोनों मुझे एकेडमी में छोड़ने के लिए आए थे, और वो लोग एकेडमी में, हम लोग जब रिसेप्शन पे पहुंचे, तो रिसेप्शन पे पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए चाय और स्नैक्स का इंतजाम करके रखा था फॉर ऑल द डैगोज हु आर कमिंग टू ज्वाइन, एंड एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था दैट वी वेलकम ऑल द डैगोज ऑन देयर ज्वाइनिंग। और चाय स्नैक्स था, तो मेरे पेरेंट्स ने वहां पे बैठे, उनको सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जो स्टाफ था हमारा वहां पर, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया उनको। पानी के लिए पूछा, चाय के लिए पूछा, स्नैक्स वगैरह दिए साथ में। तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि हम लोग, my father is also a government servant, he retired in 2009। तो उनका कहना था कि हम लोग कभी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, इतने बड़े पद के ऑफिसर्स के बीच में हम लोग
रेयरली कभी बैठे हैं। हाँ। लेकिन आज जो है, आज हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो हमारे बेटे ने हमको यहाँ पहुंचा दिया। और मेरा टेक था कि आपकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो दे वर वेरी हैप्पी। वहां बैठना, उठना, उस तरीके का माहौल, और ये मन में ये विश्वास आना कि हमारा जो है वार्ड, यानी हमारा बेटा अब इसी तरीके के माहौल में रहेगा, और हम भी इसी इसी फैमिली का एक पार्ट बन जाएंगे आगे चल करके। तो वो फीलिंग जो मेरे पेरेंट्स के फेस पे थी ना, दैट वाज इनक्रेडिबल। वो मैं एक्सप्रेशंस नहीं भूल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे एकेडमी में जाकर के अच्छा लग रहा है, बट उनको देख करके मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो दिल में ये था कि ना, कुछ कर लिया है, चलो ठीक है, आज एक लेवल अचीव किया है फैमिली के लिए, अपने लिए, चलो इसको मेंटेन करके रखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो दैट वाज रियली इनक्रेडिबल। और वेलकम जो हुआ था हमारा, दैट वाज रियली गुड। तो ये सर पूरी लाइफ टाइम मेमोरीज है जो सर आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। या हाँ। ट्रू। तो सर व्हाइल वी लुक बैक सर, व्हाट आर द चेंजेस जो सीआरपीएफ एकेडमी में ने आपके पर्सनालिटी पे लाया है? मेरी पर्सनैलिटी पे ही नहीं, हम जितने भी कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज, बेल्ट फोर्सेस एसबी से, हम लोग जब भी यूनिफॉर्म सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन आवर ओन ओवरऑल पर्सोना। आपके सोचने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस, चाल ढाल, सब कुछ चेंज हो जाता है ना। मैं कितना भी सिविल एरिया में जाऊं, एंड आई डोंट टेल पीपल, मैं जनरली लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं फोर्स में काम कर रहा हूँ। पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मैं बोलता हूँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं इस कंपनी में इंजीनियर हूँ, मैं उस कंपनी में इंजीनियर हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग। मैं कभी भी रियलिटी नहीं बताता, बट वो लोग पता लगा लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। तो वो एक डाउटफुल केस उनके दिमाग में आ जाता है, वो बोलते हैं अरे आप तो फौजी लगते हैं बिल्कुल। अब कैसे लगते हैं ये हमको भी नहीं पता कैसे लगते हैं, हाँ। लेकिन उनको अलग से दिखाई देता है। हम तो, जितने हम यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले हैं, हम तो आपस में ही रहते हैं, कैंप में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी में उस तरीके की अलग चीज नहीं लगती, सीधा स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट चलना है, बातचीत करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, सोचने विचारने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और हम लोगों के बात करने का जो ढंग है, तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग थोड़ा जनरसली बात करें। वो उस तरीके का अक्खड़ जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, बहुत ज्यादा हाई पिच में या हाई टोन में बात करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली उन्हीं की सेवा करने के लिए, उन्हीं की सुरक्षा करने के लिए भर्ती हुए। तो आखिरकार उनसे हम लोग ऊंची आवाज में क्यों बात करेंगे? तो हम लोग सॉफ्ट टोन में, नॉर्मली आपको मिलेगा कि फौजी जो है सॉफ्ट टोन में ही बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट जब वो घर पे है या दोस्तों में है। तो उन लोगों को समझ में आ जाता है, मगर हमको नहीं पता लगता। बट मैंने महसूस किया कि इंजीनियर्स तो आपको मालूम है ना, वी आर नेवर पंक्चुअल। नाउ आई एम पंक्चुअल। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद में जॉब भी किया, तो आई वाज नेवर पंक्चुअल। इट्स अ फैक्ट। तो currently I'm more punctual, and I think I'm a more reliable person now. People can rely on me. कुछ अगर हमने कमिट कर दिया है, कोई टाइम कमिट कर दिया है, कोई प्लेस कमिट कर दिया है, कुछ हेल्प किसी को कमिट कर दिया है, तो अगर आउट ऑफ द वे जाकर के भी करना पड़ेगा तो विल ट्राई, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर दिया है, अब मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, तो इट्स नॉट माय कमिटमेंट। अ कोबरा कमांडो हैज कमिटेड टू समबडी, और अ सीआरपीएफ ऑफिसर हैज कमिटेड टू समबडी। So that becomes a part of your life. You are committed. It's all that. Yeah. That brings about the change in life. Yeah. Sir, from CRPF assistant commandant to Cobra Forces, sir, what all pulled you towards joining sir Cobra Forces, sir? कमांडो तो मुझे वही बचपन से, जैसे आर्मी ज्वाइन करने का शौक था, तो पता था कि आर्मी में स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। तो जैसे नॉर्मल सभी को पता रहता है, मुझे भी पता था कि ना ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं। हाँ। और ब्लैक कैट कमांडोज के अलावा और भी बहुत सारे कमांडोज होते हैं, ये तो पता ही नहीं था। स्कूल में उतना एक्सपोजर नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी हम लोगों को। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद आई केम टू नो दैट सीआरपीएफ के स्पेशल फोर्सेस है, जिसको कोबरा कमांडो बोलते हैं, एंड दे आर एक्चुअली एलीट कमांडो यूनिट। वहां पे एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी, एंड आई वाज टोटली डिटरमाइंड टू जॉइन कोबरा फोर्सेस। मेरा बिल्कुल प्लान था कि मैं अपना अकेडमी का टेन्योर जैसे ही मेरा पूरा होगा, उसके बाद व्हाटएवर द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स, आई विल ट्राई टू ग्रैब इट।
टू ज्वाइन कोबरा फोर्सेस। और वही हुआ। अकेडमी में जब हमारा लास्ट फेज चल रहा था बिफोर पासिंग आउट परेड, तो हमारे पास एक इंटीमेशन आया कि कोबरा फोर्सेस के लिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड आई गेव माय नेम फॉर दैट। मेरे साथ में मेरे काफी सारे बैचमेट्स थे, दे वर वेरी इंथुजियास्टिक, और हमारा एक ग्रुप बन गया और हम लोगों ने अपना नाम लिख करके दे दिया वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बी रेडी, क्योंकि मोस्ट लाइकली विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आप लोगों को कोबरा के लिए कॉल किया जाएगा, एंड देन यू हैव टू प्रूव योर मेरिट। आपको वहां पहले फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, और आपका इंटरव्यू होगा, यानी साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू राउंड होगा, वो भी पास करना होगा। उसके बाद इफ डिपार्टमेंट थिंक्स दैट यू आर फिट टू ज्वाइन कोबरा फोर्सेस, तब आपको कोबरा कन्वर्जन के लिए भेजेंगे। तो हम लोग को वो वेट जो है 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया, और इसी बीच में मैं कश्मीर में पोस्टेड हो गया, और कश्मीर में पोस्टिंग होने के बाद वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थी उनको टैकल करने लगा, वहां की जो ड्यूटीज थी उनको मैंने देखा। वहां मेरे पास कॉल आया कोबरा के लिए आफ्टर सम टाइम। फिर मैंने अपने आप को फिर फिजिकली मेंटली प्रिपेयर किया, और फिर हमने कोबरा के लिए जो टेस्ट देना था वो टेस्ट किया, एंड जितने भी मेरे और मेरे बैचमेट्स हम लोग सब आए थे, वी ऑल पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, और हम सभी का सिलेक्शन हो गया था कोबरा के लिए। That's really great, sir. Okay. Sir, Cobra Forces is one of the most elite forces, and aspirants know about CRPF, but they have very little knowledge about Cobra. Like, what is the mental and physical eligibility one should have to get into the Cobra Forces, sir? या Sir, फिजिकल क्या तो है सर? बहुत मस्ट है। हाँ सर। तो सर क्या है सर, मतलब एक जनरल पर्सन है जो हाँ इसमें जाना चाहता है फॉर कोबरा, तो अभी से सर वो ऐसा क्या डेवलप करे कि आगे उसको उतनी प्रॉब्लम्स ना होंगी? ओके, देखो कोबरा की जो ट्रेनिंग है हमारी, वो लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ओवरऑल 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है, 90 days ऐसे से। और अगर वहाँ का कुछ पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, उस कुछ पार्ट से आपके आपके व्यूअर्स को भी ना ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या चाहिए, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये है कि उस 3 महीने के टाइम पे फॉर एवरी डे यू विल बी स्लीपिंग फॉर ऑलमोस्ट लेस देन 4 hours इन अ डे। और उसके अलावा आप जितना भी आपका कमरे से बाहर जब आपका पैर रहेगा, तो वो कमरे से बाहर आपका पैर चलने के लिए नहीं निकलेगा, दौड़ने के लिए ही निकलेगा। ठीक है, ग्राउंड आपके हाथ से और पैरों से कभी नहीं छूटेगा। हाथ और पैर से मतलब आपको कभी भी बोल देगा पुशअप शुरू कर दो, चाहे आपने खाना खाया हो नहीं खाया हो, आप खाली पेटे खाना खाए, कुछ भी किया है, आप कितना भी चल के आए, आप 10-12 किलोमीटर की रनिंग करके आए हैं, आप 20 किलोमीटर का आपको लॉन्ग पेट्रोल करा दिया, चल करके आए आप इतना वेट लेकर के, लेकिन फिर आपको जैसे कैंप के अंदर आएंगे तुरंत उस्ताद बोल देगा पुशअप शुरू करिए, कितने करने हैं बोला, वो कोई काउंटिंग नहीं है, हम जब मना कर बंद कर देंगे तब आपके पुशअप होंगे, एंड यू हैव टू डू इट, एंड यू विल बी डूइंग इट, क्योंकि आपके साथ वाले सब कर रहे हैं और आपका माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम हो गया। कभी भी बोल देगा पहाड़ी चढ़ने के लिए, कभी भी उतरने के लिए बोलेगा, कभी आपको बोलेगा कि एकदम गंदे से नाले में से पानी पिला देगा निकाल करके। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, हम लोगों को बहुत ही गंदे नाले में से पानी पिलाया था जंगल में एक बार घुमाते घुमाते, और हम लोग देख रहे हैं कि उस नाले से करीब 600 मीटर आगे जहां से पानी बह के आ रहा है वहां पे जानवर नहा रहे हैं, और थोड़ा आगे जा करके, थोड़ा और पीछे जा करके लोग गांव वाले नहा रहे हैं, और उसी का पानी आ रहा है वो बह करके, और हमको बोला यही पीना है, और हम लोगों ने पिया वाला पानी। पीने के बाद हम सबका गला खराब हो गया, लेकिन हम लोगों ने सरवाइव किया उस सिचुएशन को। तो वहां जो कंडीशन है वो आपका कंफर्ट जोन तो बिल्कुल भी नहीं, किसी का भी कंफर्ट जोन नहीं है। अगर आपको लगे कि आप थोड़ा भी कंफर्टेबल हो सकते हैं वहां पे, तो उस तरीके की जगह कोबरा पीआई की ट्रेनिंग जहां चलती है वहां कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। यू आर ऑलवेज ऑन द मूव। तो हमारे एक उस्ताद का फेवरेट डायलॉग था कि आप कितना भी खाना खा लीजिए, कितना भी चाय पी लीजिए, आपके शरीर पे हम 1 ग्राम भी फैट नहीं आने देंगे, चिंता मत करना। और वो हकीकत है। That's a bit intense, sir. मतलब आपने सर हंसते हंसते बता दिया, बट 3 महीने सर आई थिंक कि वो एक हेल है एक तरीके से। यू आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। सर मतलब सबके इनफैक्ट इसके आपने हेल बोला ना, तो इस 3 महीने के बीच में एक 1 वीक का हेल वीक भी होता है। अरे एंड इट इज फार मोर रिगरस। तो उसमें तो आपको शायद दिन में मेरे ख्याल से 2 घंटे भी नहीं सोने देगा। तो
हमारे ट्रेनर्स जो थे उनका एक और फेवरेट डायलॉग था, और उन्होंने हमको शुरुआत में बोला था कि साहब आप लोग देखना कि यहाँ पर जब ट्रेनिंग चलती है तो लोग चलते चलते सोते हैं, तो खड़े खड़े भी नहीं, चलते चलते सो रहे हैं। आप वॉक कर रहे हैं और आप सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद है और आप सो रहे हैं। यू आर जस्ट somehow you are conscious and you are maintaining your balance, you are just walking with your eyes closed. उस टाइम तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब अपने साथ हुआ तब समझ में आया कि क्यों चलते चलते लोग सोते हैं। यू आर सो स्लीप डिप्राइव्ड कि आपको चलते चलते भी लग रहा है कि मुझे यहाँ से और 100 मीटर तक पैदल जाना है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं, प्लेन एरिया है, आराम से चलेंगे, ठोकर खा के गिरेंगे नहीं। तो आप आंख बंद करके भी चल देंगे वहां पर 100 मीटर के, एटलीस्ट मुझे 2 मिनट तो आंख बंद करने के लिए मिले, उस तरीके का। तो वैसा हेल भी करता है उधर। ओके, मतलब ये जो पूरी वारदात है सर बहुत इंटेंस होती जा रही है सर। Yeah, how it is. how is the life while you are under training in Cobra unit and how is actually different from CRPF academy सर? मतलब CRPF का जो डैगो है सर वहां से और कोबरा में सर, मुझे तो लग रहा है सर काफी डिफरेंस है सर, बट क्या है सर? आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू सर। काफी, हाँ, काफी डिफरेंस है। एकेडमी में हम लोगों को स्लीप डेप्रिवेशन कम रहता है, और खाना प्रॉपर टाइम से रहता है, टाइम टू टाइम हमारा शेड्यूल फिक्स है। और वहां पर हम लोगों को बहुत वास्ट चीजों के बारे में बताया जाता है, लाइक नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, उनसे मुलाकात रहती है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ कोबरा ट्रेनिंग, तो कोबरा ट्रेनिंग में पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको सोने नहीं देंगे। अच्छा, एक तो सोने नहीं देंगे, ऊपर से आपको फिर क्लासरूम में बैठा के पढ़ाई भी करवाएंगे, तो वहां भी नहीं सो सकते। योर आईज शुड बी ऑलवेज वाइड ओपन। अगर आप सो गए, 100 लोगों का क्लास है, 100 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर देयर टू कंप्लीट द कोबरा ट्रेनिंग। तो उन लोगों में से अगर एक भी सो गया, दो भी सो गया, किसी एक ने गलती कर दिया, तो फिर पूरी क्लास को आधे घंटे के लिए फिर यहाँ रनिंग, वहां रनिंग, ये पनिशमेंट, वो पनिशमेंट। पनिशमेंट तो क्या ही होता है, फिजिकल एक्सर्शन करा देंगे वो लोग। फिर बोलेंगे अच्छा अभी सबकी नींद खुल गई, ठीक है, अब फिर क्लास में बैठिए, फिर क्लास में बैठ के पढ़ना, तो आप लोग थके हुए हैं और आपको, आपका दिमाग इतना इतना भी कंट्रोल में नहीं है कि आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सके, अपनी आंखें आप कंट्रोल कर सके, उतना भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लर्न द आर्ट ऑफ स्लीपिंग व्हाइल देयर आईज आर वाइड ओपन। तो वो लोग ऐसे आंख खोल करके सोना सीख जाते हैं वहां पर बैठ करके। तो अगर आपने गलती की, आप सो गए, तो फिर पूरी क्लास को पनिशमेंट है, मतलब फिजिकल एग्रेशन कराएंगे, दौड़ा दौड़ा करके, या फ्रंट रोल, बैक रोल, जो भी उनके ट्रेनर के दिमाग के ऊपर है, उसको जो अच्छा लगा वो कराए। तो और यहाँ जो हम लोग सीखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्पेशलाइज्ड जो है जंगल के बारे में हम लोग सीखते हैं। जब हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग होती है तो वी आर ऑफिसर्स, लेकिन जब हमारी कोबरा में ट्रेनिंग होती है तो वी आर अ कमांडो। फिर वहां ऑफिसर्स नहीं है हम लोग, वहां पर हम लोग तो मतलब वहाँ कमांडो कोई के साथ में। रैंक नहीं है सर? मतलब इवन द कांस्टेबल्स आर देयर विद यू एंड इवन द ऑफिसर्स आर देयर विद यू, इज दैट लाइक? हाँ, ट्रेनिंग जो चलती है, हाँ, ट्रेनिंग चलती है, तो ट्रेनिंग हमारी सबकी एक साथ ही चलती है। हम लोग भी उसी फाइल में खड़े होते हैं जिस फाइल में हमारे साथ में जवान खड़े हुए हैं, हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स खड़े हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी खड़े हैं। जितना वो दौड़ रहे हैं उतना ही हम भी दौड़ रहे हैं। उनका भी ग्रुप, हमारा ग्रुप, सब एक साथ ही करता है, कोई अलग ट्रेनिंग नहीं करता, सबका एक साथ चलता है यहाँ पर। ओके। तो वो जंगल के बारे में जो हम स्पेशल चीजें सीखते हैं वहां पर, दैट हेल्प्स व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड डूइंग ऑपरेशंस। सर्वाइवल कैसे करना है, जंगल को समझना कैसे है, हाउ अ जंगल इज अ फ्रेंड एंड अ फो बोथ। और आपकी गलती की वजह से आपका जो है वो दुश्मन बन जाएगा, आप अगर समझ जाएंगे जंगल का तो आपका दोस्त बन जाएगा। किस तरीके से आपको सरवाइव करना है, पानी कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, उसको कैसे पीने लायक बनाना है, या अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है जंगल में, तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से पेड़ पौधे को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा पेड़ पौधा आपको नुकसान कर सकता है, कौन सा जानवर है जिसे खा सकते हैं, किसको छोड़ना है, उस तरीके की काफी चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं। ऑल अबाउट सर्वाइवल। Sir, while we talk about internal insurgency and external conflicts, what are the differences in training that makes CRPF different from other forces? ओके, सी, जैसे आर्मी है, तो आर्मी के प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आर्मी के पास एक बॉर्डर है, और बीएसएफ के पास एक बॉर्डर है, एसएसबी आईटीबीपी के पास भी एक बॉर्डर है। उनको मालूम है कि इस बॉर्डर के सामने दुश्मन है,
उस बॉर्डर के पार जो भी दिखाई दे रहा है वो दुश्मन है, वो दोस्त नहीं हो सकता। यानी वहां पे अगर वहां से अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो दुश्मन है, हम उसको अटैक कर सकते हैं। सीआरपीएफ का रोल डिफरेंट ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के काम करना है, और जिन अराजक तत्वों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं वो भी इंडियंस हैं, उनके उनके भी राइट्स हैं। जितने इक्वल राइट्स किसी भी भारतीय के हैं संविधान के हिसाब से, उतने ही इक्वल राइट्स उन लोगों के भी हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं। तो यानी कि हम लोग जो फोर्स यूज करते हैं सिचुएशन को टैकल करने के लिए, वो सिचुएशन बेस्ड है। उस सिचुएशन पे हमको कितना फोर्स यूज करना है, क्या चेतावनी देने से बात बन जाएगी? अगर चेतावनी देने से बात बन सकती है तो फिर हम क्यों किसी को लाठी मारेंगे? गलत चीज है। तो किसी के ऊपर लाठीचार्ज करना कोई अच्छी बात थोड़ी है, Yes. ये गलत है। और जहां हम समझा बुझा करके लोगों को देश के बारे में बता सकते हैं, या वो जो गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके बारे में उनको समझा सकते हैं, तो वहां पे हमको फोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट पुलिस के साथ जब हम मिलके काम करते हैं तो ये सब चीजें हमको पूरा देखनी पड़ती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और दूसरे देश से आए हुए दुश्मनों को टैकल करना बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी। Yes. Sir, moving forward, sir, how the mind works जब bullets are fired, और सर क्या सर वो पूरा बेस्ड रहता है इंस्टिंक्ट पे, या इट्स टोटली बेस्ड अपॉन ट्रेनिंग जो आपको मिली हुई? इंस्टिंक्ट का तो रोल है इसमें। ऐसा मान लीजिए इंस्टिंक्ट प्लेज लाइक 20-30% ऑफ रोल, लेकिन ट्रेनिंग इज अ मस्ट। जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं उस ट्रेनिंग में हम लोगों को पता लग जाता है बुलेट फायर होती है तो कैसा लगता है, कैसी आवाज आती है, राइफल से कैसी आवाज आती है। लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर में हम पटाखे की आवाज और बुलेट की आवाज में फर्क कर सकते हैं एनकाउंटर के टाइम पर। तो उससे हमको एक अंदाजा लग जाता है ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए धोखा होगा कि बुलेट चली क्या, लेकिन तुरंत रिकवर कर जाएंगे कि नहीं बुलेट है या फायरिंग हुई है, वो पता लग जाता है। और इवन देर आर पीपल हु आर सो मच इनटू इट एंड दे आर सो मच ट्रेन्ड कि वो लोग किस राइफल से फायर हो रहा है वो भी पता लगा लेते हैं आवाज सुनकर। और हम लोगों की भी प्रैक्टिस कराई जाती है इस चीज की कोबरा के टाइम पर, कि किस राइफल से फायर हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी करना है सिर्फ आवाज सुन करके। तो कई लोग उसको डिस्टिंग्विश करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हर एक राइफल की अपनी कैपेसिटी है, तो हमको समझ में आ जाता है अगर इस वाले राइफल से फायर हो रहा है तो मतलब किस तरीके की फाइट होने वाली है या हो रही है। और जब एनकाउंटर होता है, व्हेन द बुलेट्स आर फायर्ड, you get that adrenaline rush and everything. For me it is like it's kind of an opportunity, now is the time to show what you've got in you. तो वो ऐसा हुआ है। और मुझे एनकाउंटर के टाइम पे फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, बस ये दिखाई देता है कि मेरे जवान सुरक्षित रहें और दुश्मन बच के नहीं जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर फायर खोल दिया है तो फिर वो बच के नहीं जाना चाहिए। हम उसको किसी भी तरीके से नैप करें, न्यूट्रलाइज करें, लेकिन करना है, उसको छोड़ना नहीं। और साथ में हमारे जो साथी हैं वो भी सुरक्षित रहें, तो मेरी प्रायोरिटी फिर वो हो जाती है। सर, in training, simulated war zones are created. Like, how was your experience when you landed yourself and much awaited real war zone, sir? ट्रेनिंग में जो हम लोगों का ये वॉर जोन लाइक सिचुएशन जो क्रिएट करने के बाद में उसमें हम लोगों को डाल देते हैं और बुलेट्स फायर हो रहे होते हैं, ग्रेनेड्स ब्लास्ट हो रहे होते हैं और टीयर गैस छोड़ देते हैं, पूरा कीचड़ में से निकलना है, पानी में से निकलना है, तारों के नीचे से निकलना है, कटीली झाड़ियों में से निकलना है। उस तरीके की सिचुएशन में हम लोग बहुत इंटेंसली उसको प्रिपेयर करते हैं। और जब वो करना होता है तो वी आर ऑल ब्रूज्ड, व्हेन वी कम आउट वी आर ऑल ब्रूज्ड, आंखें लाल हो रही हैं, पानी निकल रहा है, सांस नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द टीयर गैस, गला चोक हो रहा है। और एक हमारा एक ऑफिसर था, उसका
वायर से कट गया था, तो उसका पूरा पूरा सिर यहाँ से कट गया था, वायर में फंस के कट गया, एंड ही डिडंट न्यू। हम लोग उसको बाहर निकलने के बाद बता रहे हैं कि तुम्हारे ना पूरा कट गया है, तो वो बोल रहा है नहीं, ये तो मैं कीचड़ में से निकल के आया हूँ, तो वो पानी गिर रहा होगा, तो ऊपर से उसका ब्लड आ रहा था, तो एंड उसको दर्द नहीं महसूस हो रहा उस टाइम पर, उतना ज्यादा उसके कट गया। आगे एक सुई लगने के बाद में आदमी इतना जोर से चिल्लाता है, नाखून अगर थोड़ा गलत कट जाए हाँ। तो हम लोग 4 दिन तक बटन नहीं बंद कर पाते हैं, कलम से लिखना मुश्किल हो जाता है। उसका इतना बड़ा कटा हुआ है, ब्लड आ रहा है, पीछे पूरा ब्लड गिर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग भी पैनिक नहीं हो रहे हैं, और उसको तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। उस तरीके का उसको अंदर से एड्रेनलिन रश हुआ होगा कि ही बिकेम नम टू द पेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरीके का फीलिंग जो है वो असली असली एनकाउंटर में भी होता है। यू नो, you get numb to all the external feelings. The only feeling that you have is to keep our men safe and to neutralize the enemy, whatever it takes. तो उस तरीके की फीलिंग फिर रहती है वहां पर। Okay, sir. Are you like allowed to quote some instances from Warzone that you find really challenging? जैसे Warzone से कोई भी ऐसी इंस्टेंस है, जैसे आप पहली बार जब लैंड किए होंगे इन दी Warzone, या कोई ऐसा सिचुएशन जो आपको लगा कि हाँ यार हो सकता है यहाँ में फंस गया, ऐसा कुछ है? ओके, फंस गया नहीं भाई, देखो कोबरा के लिए एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि कोबरा कभी फंसती नहीं है। हाँ। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो, कोबरा कभी फंसती नहीं है, बिकॉज वी हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ taking things into hand, and we always follow, and I proudly say that Cobra always follows their tactics. टैक्टिक्स के मामले में या जंगल वॉरफेयर के मामले में, जंगल को सरवाइव करने के मामले में कोबरा से बेहतर शायद ही कोई फोर्स होगी अभी। तो फर्स्ट डे तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि एनकाउंटर हुआ तो हमारी एक टीम एनकाउंटर में है, एक टीम कहीं और है, फिर देन वी हैव टू गो देयर एज अ बैकअप एंड रिकवरी टीम। तो उस केस ऐसा एक हुआ था, उसमें एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी, इट वाज लाइक मोर देन अ किलोमीटर काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, 900 मीटर से ऊपर था वो, एक स्टीप स्लोप था, और उस वाली स्लोप से हमारी एक टीम को जाना था, एंड आई वाज ऑन दी अदर हिलॉक, और बीच में वैली बन रहा था। तो वो वैली ऐसा था कि इस तरीके से वो पहाड़ी बन रही थी, एक टीम यहाँ पे जा रही थी और एक टीम यहाँ पे नीचे से, हम लोग नीचे से शुरू किया और हम लोगों ने ऐसे करके ऊपर चढ़ना शुरू किया। मैं भी ऊपर पहुंचने वाला था, ऑलमोस्ट आई वाज ऑलमोस्ट एट दी हाइट, और दूसरी जो टीम थी वो भी हाइट पे पहुंच गई थी, वो पहुंची और उनका एनकाउंटर शुरू हो गया। वो टीम जैसी पहुंची एनकाउंटर शुरू हो गया, एंड आई डोंट नो हाउ आई मैनेज्ड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि आई हैव टू रीच देयर एसएप, और विद द साउंड ऑफ दोस बुलेट्स वी गॉट विंग्स, और हम लोग उड़ के वहां पर पहुंच गए, पता नहीं कैसे। इट हार्डली टुक माई टीम टू रीच देयर अराउंड 17-20 मिनट्स। उस हिल टॉप से नीचे उतर के उस वैली को क्लियर किया, उस नाले को क्लियर किया, वो एक बहुत पानी बह रहा था उसमें, उसको हमने क्लियर किया, फिर ऊपर चढ़े हम लोग वापस, और ये पूरा करने में हम लोगों को हार्डली 17 से 20 मिनट के आसपास में लगा था, और वहां पे हम पहुंच गए थे, तब तक एनकाउंटर वाज ऑन गोइंग। फिर हम लोग पहुंच गए एज रीइंफोर्समेंट, और हम लोगों ने फिर उनको बैकअप सपोर्ट दिया, और फिर जो है वहां पर जो भी एनकाउंटर के हमारे प्रोसीजर्स थे आफ्टर एनकाउंटर्स, वो फिर हम लोगों ने फॉलो किया। वो सिचुएशन ऐसी थी कि नॉर्मली आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल के बाद में यू नीड टू टेक ऑक्सीजन, यू नीड टू गेट सम पैंटिंग। हाँ, तो उस तरीके का हो जाता है। बट वहां पे मैंने महसूस किया कि हम लोग बहुत स्पीड में पहुंच गए थे। यहाँ पर एनकाउंटर, इधर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, उधर हम लोगों ने उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया, और फिर सपोर्ट करने के लिए हम लोग, अच्छा इन बिटवीन अब हम नीचे उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एनिमी पार्टी भी एनकाउंटर के बाद नीचे की ओर भागी हो, तो हो सकता है वो भी मिल जाए हम लोगों से। तो हम लोग वो भी फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहे हैं कि अगर एनिमी पार्टी हम लोगों को मिल गई तब हमारी क्या कार्रवाई होगी। तो खुद को भी सेफ रखना है, एनिमी अगर दिखाई देता है तो उसको भी नैप करना है, न्यूट्रलाइज करना है, और फिर अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट के लिए भी पहुंचना है। सो दैट ऑल वी डिड इन अ hell of a time. Okay. Sir, when a Fauji is on mission, there are times of hardships.
where he misses his family or his teammates. Sir, how does one manage his emotions when these things cross their minds? हम्म देखो, ये बहुत ही नेचुरल पार्ट है ये हमारी नौकरी में। तो हमारे हमारे यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं, फोर्स्ड बैचलर। तो दैट फोर्स्ड बैचलर मीन्स के यू हैव टू लिव अलोन। दो यू आर मैरिड, you might be having kids, or you are newly married or whatever, but you have to live alone. So it's kind of a bachelor life, Hmm. which is given to you by your force. So we call it forced bachelor life. Yeah. हम लोग मैक्सिमम हम लोग जो है फोर्स्ड बैचलर होते हैं। और या सिचुएशन कम्स जहाँ पे फैमिली को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नॉट बी देयर, सॉरी टू बी देयर। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लेडी वाइफ जो है, हमारे जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है उनको हम लोग लेडी वाइफ बुलाते हैं। तो लेडी वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, दे फैमिलीज आर रशिंग हर टू हॉस्पिटल फॉर सेफ डिलीवरी, और जवान जो है यहाँ पर ड्यूटी पे है, वो जा नहीं सकता है। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं। बट अभी करंट सिनेरियो में ऐसा हो गया कि छुट्टी मिलना थोड़ा सा पहले के मुकाबले, मतलब पहले यानी करीब 2 दशक पहले जो सिनेरियो था, उस सिनेरियो के मुकाबले आज की डेट में कनेक्टिविटी आसान हो गई है, छुट्टी मिल जाती है टाइम से, तो लोग पहुंच जाते हैं। बट फिर भी आपको छुट्टी मिलेगी, मान लीजिए 30 दिन की छुट्टी मिली या 60 डेज की छुट्टी मिली, तो आपने 2 महीने छुट्टी काटा, बट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, फॉर 10 months यू आर स्टिल ऑन द जॉब। वहां थोड़ी सिचुएशन आती है, तो हम लोग भी उसको कंसिडरेट होकर के देखते हैं। बट you can say it's like it's part of our job, you have to live with it. इसमें मैं सैल्यूट करूंगा सारी लेडी वाइफ्स को। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो अकेले जो है फैमिली मैनेज करते हैं। Yes. मैडम लोग जितने भी हैं सब अकेले ही फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग तो कितने ही टाइम रहते हैं घर पे, बच्चों को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, तो वो सारा कुछ जो वो अकेले कर लेते हैं ना, इट्स वेरी कमेंडेबल। हम लोगों के बस का नहीं अकेले सब कुछ मैनेज करना ही। इट्स अप टू देम। वो अगर अच्छे से मैनेज कर लेती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, तो फिर हम लोग अच्छे से ड्यूटी भी कर पाते हैं। They are actually the pillars of the family, sir. Like we can. Yeah, they are, no doubt. Yeah. Okay, sir. We are now moving towards the end of session, sir, and I would like to ask you, what would you like to convey to the general public and to the UPSC aspirants through this channel? Some words of motivation. Okay, for general public, I would say कि you see, लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। Yes. तो आपको अपना फोकस कहाँ रखना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। इफ यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम will reflect back. If you are focusing on the solution, then half of your problem is already solved. Okay, for UPSC aspirants and for other exams aspirants like SSC and maybe some other examination they are preparing, or they are preparing for like JEE, NEET, or whatever examination they are preparing. For them, I would say that exam, it's not a ghost; it won't bite you back. And the only thing that you have to keep in mind is that when the going gets tough, only the tough gets going. So don't give up. Yes. Yeah, don't give up, and just make it a habit and say to yourself that don't give up just yet. Just make it a habit, and things will become far more easy, and your aim will become much more clear. घर तक जाते हैं जब हम लोग, ऑफिस से घर जाते हैं या दोस्त से मिलने गए, वहां से वापस घर जा रहे हैं, तो हमारा एम है घर जाना। तो जब हमारा एम घर जाना है तो हमारा फोकस भी घर जाना ही रहता है। घर हमारा फोकस होता है कि हम घर में जाके क्या करेंगे, वो हमारा फोकस होता है। यू डोंट कीप ऑन काउंटिंग ऑल द पॉट होल्स, है ना, यू केम अक्रॉस ऑन द वे।
कभी होता है क्या ऐसा कि ये यहाँ तो बहुत गड्ढे हैं, मैं घर कैसे जाऊंगा, या इस रास्ते पे तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, मैं घर के इस रास्ते में तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जिगजैग रोड है, लाइट भी नहीं जलती है, स्ट्रीट लाइट खराब है, गांव पड़ते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस वाली रोड पे जाम लगता है। तो ट्रबल्स तो ऑन द वे होंगे ही होंगे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, तो आपको रास्ते में तो हमेशा समस्या मिलेगी मिलेगी, लेकिन हमारा एम होता है घर जाना। हम घर जाएंगे, हम पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, हम अपने सिबलिंग्स के साथ बैठेंगे, या हम घर में जाएंगे, आज मम्मी ने दाल बनाई होगी तो हम दाल पियेंगे, आज पापा चॉकलेट लाए होंगे तो चॉकलेट खाएंगे, आज सिस्टर के साथ में पार्टी करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम या घर जाकर के सोएंगे। आप जाएंगे और आप एक कोजी से बेड में जाएंगे, एक बढ़िया सा ब्लैंकेट ओढ़ेंगे, एंड आप बस सोना चाहते हैं, घर जाके रिलैक्स होना चाहते हैं, क्योंकि आज दिन भर आप बहुत ट्रबल्ड रहे अपनी ड्यूटी की वजह से या पढ़ाई की वजह से या जो भी आपके साथ हुआ बाहर। तो वो फीलिंग आपके अंदर रहनी चाहिए कि आप जब सर्विसेज में आ जाएंगे या आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद जहां आप पहुंचेंगे वहां पे आपका क्या टारगेट है करने का। आप वहां पहुंच करके आप क्या लोगों की एक्चुअली सर्विस करने के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ आप यूनिफॉर्म के पैशन की वजह से जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से जा रहे हो, या आप सोशल स्टेटस और पावर की वजह से जा रहे हो। तो एवरीथिंग इज देयर, आपको सब कुछ वहां पे मिलेगा, लेकिन आपका फोकस क्या है। तो जब आपका फोकस क्लियर होगा, आपका फोकस अगर पावर की तरफ रहेगा, तो आपके अंदर आज ही एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ईगो डेवलप हो जाएगा। वो ईगो आपके रास्ते, आपका खुद का डेवलप किया हुआ ईगो ही आपके रास्ते के लिए एक गड्ढा बन जाएगा, और आप उसी गड्ढे में बार बार गिरते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे, बार बार गिरते रहेंगे, एम तक नहीं पहुंचेंगे। आप अगर पैसों के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा मेरे पड़ोसी में जो पड़ोस का जो भैया है उसकी तो जॉब लग गई 30 लाख की, फिर मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ, यहाँ तो पैसे कम मिलेंगे। देन यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग टू अदर्स, है ना। वो मेरी कजन सिस्टर है, उसके तो इतनी बढ़िया जॉब लग गई, वो तो फॉरेन निकल गई, वो तो सिंगापुर चली गई, अरे यहाँ क्या रखा है। तो फिर आप कंपैरिजन करते रहेंगे। अगर आपका एम है सर्विस करना, यू आर कमिंग है टू सर्व पीपल, टू सर्व योर नेशन, तो फिर आपको लगेगा कि मेरा एम सर्विस देना है। तो फिर आप यू विल बिकम वेरी हम्बल। आपका जो सोचने का तरीका है, आपका देखने का तरीका है, लोगों को एसेस करने का तरीका है, फिर आप लोगों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो आज जो लोग आपको हर्डल लग रहे हैं, वही लोग आपको लगेगा ये तो मेरे लिए रास्ता आसान करने वाले लोग हैं। यू विल लर्न द आर्ट ऑफ हैंडलिंग एंड टैकलिंग पीपल। हर एक आदमी का नेचर एक जैसा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप जो है अपने रास्ते के गड्ढे मत गिनो, अपने रास्ते के स्पीड ब्रेकर को मत गिनो, ट्विस्ट एंड टर्न्स को मत गिनो। आप जो है अपने मकसद के बारे में सोचो, और वहां पहुंचने के बाद जो आपको करना है आप उसके बारे में सोचिए। आखिरकार वहां पहुंच के आपको करना क्या है। तो दैट विल गिव यू पावर। वो आपको जो है आत्मबल देगा कि मुझे एक अच्छा काम करने के लिए वहां पे जाना है, तो मुझे करना ही करना है। That's from me. Okay, sir, it was great knowing about the forces. It was great learning from your experiences. Thanks for enlightening us about the things. And uh, like we the people of India are, sir, lucky to have such tough people protecting us in such tough terrain. Thanks for all your time, sir. And I hope you had great experiences being here with us on Career Tribe, sir. Yeah, it was really good having you on this chat, and I'm really grateful that you thought I should be the first person. I'm really thankful for that. It gives me immense pleasure that if I'm able to change the life of even 1% of people that I meet in my life, I think it's worth. My life is worth it. And really thankful for this session. Thanks again, sir. Thank you. Jai Hind. Okay, Jai Hind.